یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ میں 1256 کووڈ-19 کے انفیکشن اور 10 اموات ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد 637 ہو گئی اور مثبت معاملات 80,751 تک جا پہنچے۔ گاندھی ہاسپٹل کے کووڈ کے مریضوں کی صحت کی معلومات کے لیے سیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایگریکلچرل انشورنس کارپوریشن آف انڈیا نے امید ظاہر کی کہ تلنگانہ میں تقریباً 50,000 کپاس اور مرچ کے کسانوں کے لیے ای ورشا بیمہ قریب 2020 انشورنس پلان حاصل کریں گے۔ وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کے تارک راما راؤ نے آج حیدرآباد میں ٹریفک کے لیے بیرامل گوڑا RHS فلائی اوور کو کھول دیا اور تلنگانہ کے تمام اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اوسط تا شدید بارش کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں 1256 کووڈ-19 کے انفیکشن اور 10 اموات ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد 637 ہو گئی ہے اور مثبت معاملات 80,751 تک جا پہنچے ہیں۔ ریاست میں سرگرم معاملات کی جملہ تعداد 22,528 درج کی گئی ہے۔ ریاست میں بحیثیت مجموعی روبے صحت ہونے کی تعداد 57,586 تک جا پہنچی ہے۔ روبے صحت ہونے کی شرح 71.31% ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں روبے صحت ہونے کی شرح 68.78% ہے۔ 22,528 سرگرم مریضوں کے جملہ ریاست بھر میں 15,781 مریض گھروں میں الگ تھلگ ہیں، جبکہ 6,739 مثبت پائے گئے افراد ہاسپٹلس میں زیر علاج ہیں۔ آج جملہ درج کردہ معاملات میں سے GHMC 389 مثبت معاملات کے ساتھ سر فہرست ہے، جس کے بعد ضلع رنگا ریڈی میں 86، سنگا ریڈی میں 74، کریم نگر میں 73، ورنگل اربن میں 66، عادل آباد میں 63 اور نلگنڈا میں 48 معاملات درج کیے گئے۔ اسی دوران صحت کے نئے بلیٹن میں سوائے عادل آباد کے تمام اضلاع میں کووڈ معاملات کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ عادل آباد میں یہ تعداد 63 تک جا پہنچی ہے۔ اسی دوران گزشتہ 3 دنوں کے دوران آصف آباد میں ایک بھی معاملہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ بھونگیر اور ملگ میں فیکس 3 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں سرکاری اور خانگی تدریسی دواخانوں میں مشترکہ طور پر 17,866 بستر دستیاب ہیں۔ محکمہ صحت کے بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاستی حکومت نے خانگی دواخانوں میں مفت بستر فراہم کیے ہیں۔ ہندوستان میں کووڈ-19 کے معاملات آج 22 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں، کیونکہ 62,064 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا کہ اموات کی شرح بڑھ کر 44,368 ہو گئی ہے، کیونکہ 1,007 مزید اموات ہوئی ہیں۔ روبے صحت ہونے والوں کی تعداد 15,35,743 تک جا پہنچی ہے، کیونکہ 54,859 مزید افراد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روبے صحت ہوئے ہیں۔ اس طرح روبے صحت ہونے کی شرح 69.33% تک جا پہنچی ہے۔ سابق صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی نے آج کووڈ-19 سے مثبت پائے گئے ہیں۔ مکھرجی نے ان سے گزشتہ ہفتے ملاقات کرنے والے افراد سے درخواست کی کہ وہ الگ تھلگ رہتے ہوئے کووڈ-19 کا معائنہ کروائیں۔ ایگریکلچر انشورنس کارپوریشن آف انڈیا نے امید ظاہر کی ہے کہ تلنگانہ میں تقریباً 50,000 کسان کپاس اور مرچ کے لیے ای ورشا بیمہ قریب 2020 انشورنس پلان حاصل کریں گے۔ ڈپٹی جنرل منیجر AICC بھارتی نے بتایا کہ کسان اس ماہ کی 14 تاریخ تک پریمیم ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ورشا بیمہ انشورنس ریاست کے حیدرآباد اور میرچل کے سوا تمام اضلاع کے کپاس کے کسانوں کے نافذ العمل رہے گی، جبکہ مرچ کے لیے انشورنس ریاست کے 16 اضلاع میں ہوگی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ سوسائٹی سے بارش کا ڈاٹا خریدتے ہوئے انشورنس کے دعووں کے لیے اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ Agriculture insurance company, we were implementing weather-based crop insurance scheme to bring our own scheme, and that is Varsha Bima AAC product, rainfall insurance product. This is deficit rainfall, excess rainfall, both the parameters are covered under this scheme. Commercial crops like cotton and chili notified by us, and we are giving insurance coverage for these two crops. Except Medchal, Malkajgiri and Hyderabad, 31 districts cotton is being notified. Chilies are notified in 16 districts of Telangana. Farmer has to bear the 5% of the premium of the sum insured, but no subsidy component in this. Hence, the claim settlement will be fast. The cut-off date for enrollment is 14th August. یہ آکاشوانی ہے۔
वज़ीर बल्दिनज़ व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने आज हैदराबाद में ट्रैफिक के लिए बैरामलगुड़ा RHS फ्लाईओवर को खोल दिया। मेयर बंतु राम मोहन, वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी और दीगर अवामी मुंतखब नुमाइंदे उनके साथ थे। ये फ्लाईओवर स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के तहत तामीर किया गया है और इसके ज़रिए सिकंदराबाद की इनर रिंग रोड से ट्रैफिक के बहाव में आसानी होगी। इस फ्लाईओवर की तामीर 26.45 करोड़ रुपए के सरफे से हुई है। ये फ्लाईओवर 780 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। वजीर के तारक रामाराव ने M अंजलि के लिए 1,50,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की, जो इंदौर में IIT साल दुआम की तालीम हासिल कर रही है। वरंगल जिले के हसनपर्ती इलाके की अंजलि ऑटो ड्राइवर की इकलौती बेटी है, जिसने MPC में 972 निशानात के साथ TSRJC गुरुकुलम हसनपर्ती से इंटरमीडिएट की तकमील की और इसे IIT इंदौर में सीट हासिल हुई। ताहम इसने वजीर से अपील की थी कि इसका ख़ानदान मसारिफ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, इसीलिए उसकी मदद की जाए। इसके तालीमी मुजाहरे की सताइश करते हुए KT रामाराव ने मसारिफ बर्दाश्त करने का वादा किया था। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव और सरगर्म मानसून के ज़ेर असर कल से शदीद बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के दफ्तर ने कहा है कि तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान औसत शदीद बारिश जारी रहेगी। गांधी हॉस्पिटल के कोविड के मरीजों के अरकान खानदान राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि हुकाम ने उनकी सेहत के सिलसिले में मालूमात फराहम करने के लिए एक सेल कायम किया है। यह सेल बतौर ख़ास ICU में वार्ड्स में ज़ेर इलाज और तशवीशनाक हालत के शिकार मरीजों की तफसीलात फराहम करेगा। चूँकि गांधी हॉस्पिटल में तीमारदारों को अंदर आने या फिर मरीज के बिस्तर के करीब इन्फेक्शन के फैलने के खदशे के तहत इजाज़त नहीं दी गई है, उनके लिए अब तक मरीज से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना एक बड़ा चैलेंज हो गया था। हैदराबाद में चादरघाट पुलिस ने हफ्ते की शब आजमपुरे में पेश आई कत्ल की वारदात के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल मोहम्मद साजिद उर्फ चिचा, जो गुज़िश्ता चंद बरसों से 6 मुश्तबा अफराद को जानते थे, ने मुबैना तौर पर उनकी पिटाई की थी। उस वक्त 2 को गिरफ्तार किया गया था। इस मुखासिमत पर इन अफराद ने मनसूबाबंद तरीके से आजम फंक्शन हॉल रेल की पटरियों के करीब हफ्ते की शब साजिद पर हमला कर दिया। ACP सुल्तान वजार देवेंद्र ने ये बात बताई। महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कोविड के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है, में मजीद 150 बिस्तरों को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वरंगल अर्बन के कलेक्टर राजीव हनुमंतु, जिन्होंने पीर को हॉस्पिटल का मुआयना किया, इस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट नागार्जुना रेड्डी से कहा कि वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ बिस्तरों को तैयार रखें। वाज़ेह है कि कोविड-19 की आला सतही इख्तियारी कमेटी, जिसने हाल ही में MGM हॉस्पिटल का मुआयना किया था, इंतजामिया को तजवीज़ पेश की थी कि पुराने सर्जिकल वार्ड्स में 90 और फीवर वार्ड में 60 बिस्तर तैयार रखे जाएं। वजारत सेहत के इक़दाम ई-संजीवनी OPD टेलीमेडिसिन सर्विसेज ने 1,58,000 ऑनलाइन कंसल्टेशंस का इंदराज किया है। वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद हर्षवर्धन ने कहा कि गुज़िश्ता नवंबर से 23 रियासतों ने इन खिदमात का आगाज़ किया है और मुल्क की 75% आबादी का अहाता किया गया, जबकि दीगर इस सिलसिले में पेशरफ्त कर रहे हैं। ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के जरिए डॉक्टर से डॉक्टर और मरीज से डॉक्टर 2 तरह के टेली कंसल्टेशंस को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत ई-संजीवनी प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा है। रेलवे यौम आज़ादी के पेश नज़र आज से सफाई का हफ्ता मना रहा है। इस हफ्ते के दौरान खुसूसी सफाई की मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। साथ ही पटरियों, स्टेशनों के दफातर, कॉलोनियों, काम के मुकामात, स्टेशनों के करीब और रेलवे स्टेशन के करीबी इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वजारत रेलवे ने कहा कि पटरियों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देते हुए दीगर बेकार अशिया के साथ प्लास्टिक की बेकार अशिया को जमा करने के काम भी किए जाएंगे। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। तेलंगाना में 1256 कोविड-19 के इन्फेक्शन और 10 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इस तरह बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद 637 हो गई है और मुस्बत मामलात 80,751 तक जा पहुंचे हैं। गांधी हॉस्पिटल के कोविड के मरीजों की सेहत की मालूमात के लिए सेल का क़याम अमल में लाया गया है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उम्मीद जाहिर की है कि तेलंगाना में तकरीबन 50,000 किसान कपास और मिर्च के लिए ई वर्षा बीमा खरीफ 2020 इंश्योरेंस प्लान हासिल करेंगे।
वजीर बल्दी नजमनस KTR ने आज हैदराबाद में ट्रैफिक के लिए बैरामलगुड़ा RHS फ्लाईओवर को खोल दिया और तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान औसत शदीद बारिश जारी रहेगी। इसी के साथ ही आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाकाई खबरें यहीं ख़त्म हुई।